Hello student. You are welcome in online study. Today we learn subject science standard 7 subject science lesson number 2 plants structure and function. See the lesson plants structure and function. Second lesson plants structure and function. Parts of the plants, we know there is 5 parts of plants, roots, stem, leaves, flower and fruits are the parts of the plant. By studying these parts, we can identify the types and species of plants. Roots. What is roots? Part of the plant that grows under the soil and support the plant. There are two main types of root: tap roots in dicotyledonous plants and fiber roots in monocotyledonous plants. See, there is a seed. Here is plumule in upper side and lower side radicals. It go under the soil and made roots, and plumule made the stem. See the roots. Here is root. This is taproot. Taproot, it is called secondary roots. Here is the secondary roots and primary roots, roots hair, root tips, root cap. These are part of roots. ये सभी जो है रूट्स के पार्ट हैं. इनका जो है अध्ययन हम करेंगे एक ही भाग का, जो कि ये टैप रूट कहलाता है. तो इस तरह से आप सीट को देखेंगे, उसमें से एक भाग जो पहला निकलता है जो है सॉइल में जाता है, रेडिकल्स कहलाता है. इससे जो है रूट बनता है. ऊपर का भाग जो प्लूमेली कहलाता है, यह जो है इससे स्टेम बनता है. तो टैप रूट हो गया. रूट्स में जो है और भी हम चीजें देखेंगे क्या क्या रूट्स में आते हैं. रेडिकल्स. व्हाट इज रेडिकल्स? रेडिकल्स इज द पार्ट दैट grows from inside the seed towards the soil. It forms the root system of the future plant. Root grows under the soil. Plumule is the part that grows above the soil. As seed germinates, it forms future shoot system. It grows above the soil and becomes stem. Third, taproot. Taproot is thicker at the base, at the taper at the end. Taproot produces secondary roots. Secondary roots grows obliquely and spread far and wide in the soil. Taproot support the plant. Fourth is root hair. What is root hair? Hair-like process near the root tips are called root hair. Root cap. In the region of the growth of the root, the tip is covered by cap-like structure. This is the root cap which protects the root tips from injuries. This is called root cap. Root cap. And then fiber root. What is fiber roots? Fibrous root arise from the stem. फाइब्रस रूट जो होता है वो स्टेम से निकलता है. फाइब्रस रूट्स अराइज फ्रॉम द स्टेम. एडवेंटिशियस रूट. व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट? सम रूट्स ग्रोज फ्रॉम द स्टेम just above the soil. These called adventitious root. Maize, sugarcane and sorghum have two types of roots: adventitious root above the soil and roots growing under the soil. तो इस तरह से जो कुछ मेज, शुगर केन, सोरगम, इस तरह के जो प्लांट्स हैं, इनमें जो है इस तरह के रूट्स पाए जाते हैं. उसमें टू टाइप्स के रूट्स होते हैं. एडवेंटिशियस रूट जो है सॉइल के ऊपर होता है, और जो मेन रूट होता है वो सॉइल के नीचे होता है. तो इस तरह से दो तरह के रूट्स इसमें
कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें पाए जाते हैं, जैसे मेज, शुगर केन, sorghum है। नेक्स्ट हम रूट्स के और भी चीजें देखेंगे। व्हाट इज फंक्शन ऑफ रूट्स? फंक्शन ऑफ द रूट्स, फर्स्ट ए, होल्डिंग एंड एंकरिंग द सॉइल फर्मली। नेक्स्ट, absorption of water and minerals. C, supporting the plants. These are the function of the roots. Roots जो है holding and anchoring the soil firmly, soil को पकड़ के रखता है, और absorption of water and minerals, जो water minerals होते हैं soil में, उसको ऑब्जर्व करके प्लांट्स को देता है, और सपोर्टिंग द प्लांट्स को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, modified roots. Modified roots, aerial roots, absorption of moisture from air. इसमें जो है modified roots में aerial roots आता है, ये जो है क्या करता है, absorption of the moisture from the air. Stilt roots ये क्या करते हैं, supporting the plant above the soil. जो stilt root होते हैं ऊपर से प्लांट को सपोर्ट करते हैं। runner roots, vegetative proportion जो होता है रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ब्रीदिंग रूट्स, ब्रीदिंग का काम करते हैं, ब्रीदिंग। prop roots, what is prop roots? Prop roots are seen in the banyan tree. These roots arise from branches and they grow toward the soil. Once reaching the soil, they support canopy of the huge tree. इस तरह से बनियान ट्री में ये prop roots पाया जाता है, ब्रांच से निकल करके सॉइल में आते हैं, फिर सॉइल में ये जो है मोटे हो जाते हैं और उसको बनियान ट्री को ये सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टेम। व्हाट इज स्टेम? देयर इज ए स्टेम, पार्ट्स ऑफ स्टेम, दिस पार्ट कॉल्ड इंटरनॉड, हियर इज नॉट्स, दिस इज कॉल्ड इंटरनॉड, बड, लीफ, बड, ग्रोइंग इंड। इस तरह से प्लांट है, इसके जो है सामने इसके पार्ट्स हैं, जो ये नॉट्स होते हैं, नॉट्स के बीच का जो इंटरनल एरिया होता है इसको इंटरनॉट कहते हैं। यहाँ से एक पित्ती जैसा, लीफ जैसा छोटा सा दिख रहा है, ये बड कहलाता है, और ये जो है लीफ है, और ऊपर का जो भाग होता है उसको भी बड कहते हैं। लास्ट का जो एकदम जो हायर भाग होता है जिधर से प्लांट्स बढ़ता है उसको ग्रोइंग कहते हैं, वहां से जो है प्लांट्स बढ़ते हैं। तो द स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर, जमीन के ऊपर स्टेम होता है। स्प्राउटिंग सीड प्रोड्यूस प्लुमुले फ्रॉम द प्लुमुले द स्टेम ग्रो, जो है सीड में से प्लुमुले निकलता है, प्लुमुले में से जो है ये स्टेम बनता है। लेंथ ऑफ स्टेम ग्रेजुअली इंक्रीज एट द स्प्राउट ग्रोज, धीरे धीरे जो है ये स्टेम का ग्रोथ होता है, बढ़ाई बढ़ता है इसके जरिए। नॉट्स ऑन द स्टेम आर द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द लीव्स कम आउट, नॉट्स जहाँ होते हैं वहीं से लीफ निकलता है। बिटवीन टू सक्सेसिव नॉट्स इज एन इंटरनॉट, जो है जो दो नॉट्स के बीच का जो जगह होता है उसको इंटरनॉट कहते हैं। द टिप्स ऑफ आर द एपिकल इंड्स ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड ए बड, जो है इसको हम, जो ये छोटा सा भाग दिख रहा है इसको हम बड कहते हैं। लीफ, व्हाट इज लीफ? देयर इज मेनी पार्ट्स ऑफ द लीफ, सी द लीव्स, दिस एरिया कॉल्ड लीफ बेस एंड इट इज कॉल्ड स्टीपल, पेटियाल्स, दिस इज कॉल्ड पेटियाल्स, लीफ ब्लेड्स, these parts called leaf blades. Midvein, this area is called midvein. Vein, some lines are seen, this is called vein. Leaf margin, this is outer area called leaf margin, this area called leaf apex. इस तरह से लीफ के जो पार्ट्स होते हैं जो स्टेम से लगा होता है उसको बेस कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। यहाँ से एक छोटा लीफ जैसा निकलता है इसको स्टिपुले कहते हैं, और ये जो स्टेम से जो भाग लगा रहता है इस तरह से बीचों बीच जो है उसको हम पेटियोल कहते हैं, और पूरे जो भाग होता है जो लीफ का इसको लीफ ब्लेड कहते हैं।
इसके बीच में जो एक लाइन जैसा दिख रहा है इसको मिड वेन कहते हैं। इस तरह से छोटे छोटे लाइन जैसे दिख रहे हैं इसको वेन कहते हैं। और किनारे वाला जो भाग होता है लीफ को इसको लीफ मार्जिन कहते हैं। और लास्ट का जो भाग होता है इसको लीफ अपेक्स कहते हैं। इस तरह से लीफ के पार्ट होते हैं। चलो देखते हैं लीव्स को। लीफ अराइज फ्रॉम द नॉट्स ऑन स्टेम, जो है लीफ स्टेम पर जो है निकलते हैं नॉट्स के पार्ट से। अभी हमने देखा जनरली लीव्स आर थिन फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर। जनरली जो है लीफ पतले होते हैं, चौड़े होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। लीफ ब्लेड आर लेमिना, द लीफ द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ जो होता है इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। लीफ मार्जिन एज ऑफ द लीफ, एज ऑफ द लीफ जो किनारा भाग होता है इसको जो है लीफ मार्जिन कहते हैं। टाइप्स ऑफ लीफ मार्जिन इंटायर, डेंटेड एंड लोबल्ड। इस तरह से जो है अलग अलग प्रकार के लीफ मार्जिन वाले जो है लीफ के मार्जिन्स पाए जाते हैं। इंटायर, डेंटेड एंड लोबल्ड पाए जाते हैं। लीफ अपेक्स जो लास्ट का किनारे का भाग होता है इसको लीफ अपेक्स कहते हैं। टिप ऑफ द लीफ, लीफ अपेक्स, टिप ऑफ द लीफ, टाइप्स ऑफ द लीफ अपेक्स। इसमें टेम्परिंग, पॉइंटेड और राउंडेड इस तरह के जो है लीफ अपेक्स पाए जाते हैं। पेटियाल्स, पेटियाल्स द स्टॉक ऑफ लीफ, द स्टॉक ऑफ लीफ, सम लीव्स है पेटियाल्स, सम डू नॉट है पेटियाल्स। किसी में होता है किसी में पेटियाल्स नहीं होता है। लीफ बेस, द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टेम, स्टेम से अटैच होता है इसको हम लीफ बेस कहते हैं। स्टुपल्स, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर नियर द लीफ बेस, सम लीव्स हैव स्टुपल्स, सम लीव्स डू नॉट हैव स्टुपल्स। जो यहाँ पर लीफ बेस के पास में ऐसा दिखता है इसको स्टिपल कहते हैं। तो सभी में नहीं होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है। तो इस तरह से जो है पाए जाते हैं। ये जो है लीफ की मार्जिन है, इंटायर लीफ है, डेंटेड लीफ है, लेबल्ड है। तो इस तरह से मार्जिन जो है लीफ मार्जिन में हमने पढ़ा जो लीफ मार्जिन अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लीव्स। मेन टाइप्स लीफ के जो टाइप्स होते हैं वो सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स होते हैं। सिंपल लीव्स जो होता है यहाँ पे हम देखेंगे कुछ लीव्स दिखाए गए हैं। इनका जो है कैसी अरेंजमेंट कैसा है, इसका अलग अलग अरेंजमेंट है। अल्टरनेट है, डिस्क्यूरेट है, पोजिट है, वेरल है। तो ये जो है अलग अलग टाइप से इनका अरेंजमेंट भी होता है। तो मेन टाइप्स ऑफ लीव्स जो होते हैं सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स होते हैं। सिंपल लीफ किसको कहते हैं? सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड विथ सिंगल मिड लीफ जो होता है उसको सिंपल लीफ कहते हैं। जो सिंपल लीफ होता है वह सिंगल मतलब होता है अनडिवाइडेड और उसका लीफ ब्लेड होता है विथ सिंगल मिड लीफ, सिंगल मिड लीफ भी होता है। कंपाउंड लीफ, लीफ ब्लेड डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल लीफलेट्स, जो है लीफ ब्लेड बहुत सारे लीफलेट्स में डिवाइड होता है तो उसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कैसा होता है? द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स में ये अरेंजमेंट अलग अलग होता है। अल्टरनेट, वेयल, स्पिरल, इस तरह से अलग अलग जो है अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम अल्टरनेट कहते हैं। एक के बाद एक जो है लीफ यहाँ पे दिख रही है। और डिस्कोरे ये जो है राउंड अप हो रहे हैं, दोनों लीफ एक साथ दिख रही हैं। और यहाँ पे अपोजिट एक लीफ के सामने आमने सामने दूसरी लीफ दिख रही है। वेरल ये जो है राउंड के जैसा लेते हुए लीफ आगे बढ़ती है, इसको वेरल कहते हैं। तो इस तरह से लीफ का शेप होता है। इस बात देखेंगे फ्लावर, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ द फ्लावर? तो देखेंगे यहाँ पे हम एक जो है हिबिस्कस का फ्लावर लेकर के उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसको पूरी तरह से इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। वर्टिकल सेक्शन ऑफ द हिबिस्कस फ्लावर जो होता है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। जो है यहाँ पे जो नीचे का भाग होता है इसको पेडिशियल कहते हैं। ओवरी जो ये भाग होता है व्हाइट कलर का दिख रहा है इसको ओवरी कहते हैं। कैलेक्स ग्रीन कलर का जो भाग है इसको कैलेक्स कहते हैं। और ये जो कोरेला है ये पूरा जो पार्ट है इसको कोरेला कहते हैं। फिलामेंट ये जो
येलो कलर का दिख रहा है इस तरह का भाग, इसको फिलामेंट कहते हैं। एंथर ये नीचे का भाग एंथर, और स्टाइलिस इधर इसकी भाग को स्टाइलिस कहते हैं। स्टिग्मा जो ऊपर जो मुंडी के जैसा दिख रहा है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। इस तरह से फ्लावर्स के पार्ट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग करके भी हम उसको जो है देख सकते हैं। ये पेडिशियल है, यहाँ पे दिखाया गया है। पेटाल्स है, सब अलग अलग करके देखा गया है। एंथर ही आपको यहाँ पे दिख रहे हैं येलो कलर में, स्टिग्मा ये अलग करके दिखाया गया है। तो ऐसे पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के। पेडिशियल द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिशियल। इट मे बी लॉन्ग और शॉर्ट। जो है जो पेडिशियल किसको कहते हैं, स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिशियल। इट मे बी लॉन्ग और शॉर्ट, ये लंबा भी हो सकता है, शॉर्ट छोटा भी हो सकता है। वन इंडीज अटैच टू स्टिम, जो है इसका एक एंड जो होता है वो स्टिम से लगा होता है। ये भाग जो है किसी किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, शॉर्टर होता है, लेकिन ये स्टिम से लगा होता है। रेसिपिक्टल end of the pedicel which is attached to flower is in large and salon. This is called a रेसिपिक्टल। ये जो भाग होता है जिससे जो है फ्लावर्स अटैच होता है, इसको हम रेसिपिक्टल कहते हैं। नेक्स्ट है कैलिक्स। कैलिक्स किसे कहते हैं, आउटर मोस्ट व्हेरल ऑफ द फ्लावर, green in color and protective in nature. The petals in bud conditions are covered over by calyx. calyx जो होता है ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। calyx ये भाग इसको कवर करके रखता है ये। तो calyx outer most whorl of the flower, ये ग्रीन कलर में होता है, एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर, जो है प्रोटेक्ट के लिए, फ्लावर का प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। द पेटल्स इन बर्ड कंडीशन आर कवर्ड ओवर बाई कैलिक्स। जो पेटल्स होते हैं वो कैलिक्स के से जो है कवर किए रहते हैं। कोरेला, पेटल्स मेक द कोरेला, पेटल्स में बी कलर्ड आर वाइट। तो कोरेला क्या है, पेटल्स जो है जो से कोरेला बनता है। पेटल्स में भी कलर और वाइट, कोई कोई जो है कलरफुल होता है और कोई कोई वाइट होता है। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एंडोर्सियम, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, जो है और भी इसमें जो हमने देखा। उसके अलावा इंडोर्सियम वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। It consists of a stamens. Each stamen is made up of anther and filament. Gynosium, this is the female reproductive part of the flower. This is made up of a carpels. Carpels consist of stigma, style and ovary. इस तरह से ये पार्ट जो होता है एंडोर्सियम, इसको जो है मेल पार्ट कहते हैं। जिनोसियम इसको हम फीमेल पार्ट कहते हैं। ये प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोडक्ट्स जो है इसके द्वारा प्रोडक्ट का काम होता है। पोलिनेशन, व्हाट इज पोलिनेशन, पोलन ग्रेन दैट आर रिलीज फ्रॉम द एंथर्स fall on the stigma of anther flower. This process is called pollination. तो पोलिनेशन क्या है, तो पोलन ग्रेन जो होता है वो रिलीज होकर के दूसरे फ्लावर पर गिरता है। तो ये प्रोसेस जो होता है इसी को पोलिनेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, द ओवल्स आर एग cells in the ovary are fertilized by the pollen grains fallen on a stigma. This process is called fertilization. इस तरह से ओवल्स या एग सेल्स जो होते हैं वो ओवरी होकर के फर्टिलाइज करते हैं। पोलन ग्रेन्स जो होता है वो स्टिग्मा पर गिरता है। तो यही जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्रूट्स, व्हाट इज फ्रूट्स, वी ईट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पे फ्रूट देख सकते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। वी ईट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट।
We eat many different types of fruit. Each type of fruit has its own characteristic. We eat many different types of the fruits. We eat many different types of the fruit. Each type of the fruit has its own characteristic. There are variations in their shape, color, taste, etc. Mango contains only one seed, whereas jackfruit consists of many small fruitlets, each with its own seed. इस तरह से अलग अलग जो फ्रूट्स हम देखे हैं, इनका अलग शेप होता है, अलग कलर होता है, अलग टेस्ट होता है. इनमें जो सीड्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. कोई कोई में वन सीड होता है, किसी में बहुत सारे स्वीट्स होते हैं. ईच फ्रूट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक. द वेरिएशन इन फ्रूट्स आर विथ रिस्पेक्ट टू देयर शेप, कलर, टेस्ट, skin or shell, fleshy part and seed, etc. Fruits like cashew has its seeds outside the fruit. Dicotyledonous seeds can be divided into two equal parts. तो इस तरह से जो है अलग अलग तरह के हम सीड्स देख सकते हैं, जो है फ्रूट्स भी जानते हैं और इनका हम जो है टेस्ट भी ले चुके हैं. तो आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त की शॉर्ट में. इसका वहीं पे हम आपको इस लेसन का एंड करते हैं. थैंक यू.